The basic of electric vehicles and what are the things that is happening around the world in electric vehicles, mostly in the area of advancement to the system, which will be take up to the shortage of our conventional energy sources. So moving to the non-conventional energy sources. So without any further delay, I will invite our principal sir to formally start the session. Sir. Uh, am I audible? So thank you, Dr. Ashutosh, for such a nice introduction. And sorry for the Gaurav sir, inconvenience. Actually, I'm not. Gaurav sir, Yes. Yeah. principal sir is in the meeting, so he will formally start the meeting and then further I will take over the podium. Okay. Can you repeat, please? Principal sir is in the meeting, so he will formally start the uh, webinar All right. and All right. then we All will. right. Good afternoon to principal sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to all to organizing such a wonderful webinar. A special thanks to Dr. Asutosh, our coordination team, Dr. Manji, and all ITPR students. I welcome all the students who have already joined and who are still joining in the webinar. I welcome Dr. Gaurav Kumar, Professor Mechatronics of IIT, Triple IT Bhagalpur. Uh, the topic today, which our coordinator has selected, is really the upcoming and emerging technology which attracts our the budding minds of our students. Electronic vehicle is the demand of this era, and in future, very few motor cars will be visible in the near future of 5 years on the road. Bihar government has taken the initiative, and our top brass politicians are being used. नहीं नहीं हम लोग ये The insurance company has already started the production also. Last week we have seen in newspapers Tata Motors has also launched Tata Tigor electrical vehicle, and nowadays the people are querying with us, with all technocrats, that how it will get charged and what will be the durability of the battery and what will be the effect of this electrical vehicle on the passenger and the riders. So I'm hopeful that this webinar will be very useful for our students, and our learned speaker of this webinar will give the total glimpses of the electrical vehicle, so that not only mechanical and automobile students will get it benefited, but all students of interdisciplinary branches also will get benefited, and in turn they will benefit our society. So thanks once again, and I hope this webinar will be very fruitful for our students. Once again, thanks to our coordinator and our coordination team. Yes, Dr. Ashutosh, thanks, and over to you. Thank you, sir, for putting up the government policies and importance of this area. Your sound is not audible, Dr. Ashutosh. Thank you, sir, for your brief idea about the government policies and the future trend in electric vehicles. Dr. Kumar, now the forum is yours.
Gaurav sir. Yeah. Thank you, Principal Sir, for the introduction. And it is my privilege that I got the opportunity to address the student and faculty members of your organization. Uh, Actually, I am not well, having fever and cough, but since it was scheduled, so I didn't want to miss it. So I will cover it. So basically, when I did my PhD, so I worked on electromechanical interactions, and further when I joined Triple IT Bhagalpur, so wanted to pursue that knowledge in other domains. So electric vehicle is a very uh, good domain, and we have also developed one motor over here in electric in our workshop at Triple IT Bhagalpur. We are in the prototyping phase, that so that it can be well suited for electric vehicle technology. So now I would like to share my presentation. Uh, just a second. गौरव सर अगर आप तो एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लेते तो बच्चे आपको देख भी लेते. All right. I will switch on the videos. Actually, since I am not in a good health, so uh, That's not problem, okay, sir. I see. All right. So I have switched it Okay. on. Yes, sir. So, Thank you, sir. thank you. आप So okay, I will share the screen. sure, sir. Sir. Is, Hello. हाँ, is it Meeting चल रहा है. visible? Can you see my screen? अभी तक तो हम काफी चल रहा है. अब हाँ, yes, sir. All right. Okay. सर जिम्मू के मुंह से बोल रहे हैं. जिम्मू So से. now I will go other member to सर. their हाँ सर. जी. microphone. हाँ. So I will मीटिंग चल रहा है सर. switch the video so that सर my data will get over. All right. No problem. Okay, सर QC एग्जाम दिए थे. थियोरी का एग्जाम अभी. Yes. So in today's talk, I will just discuss the brief of electric vehicle and the hybrid vehicle. So I will cover introduction, that uh, how many days is classified or battery electric vehicle is classified, what is hybrid electric vehicle, and what is a little bit of government policies. Okay, so you all know that. Hello. 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 Sir. Yes. Hello. Yes. Hello. क्या हुआ? हेलो. Yes. And is it wrong? Can you please? सर को पहले बोलने दो, उसके बाद हमारी जो क्वेरी होगी क्लास में पूछोगे. ठीक है. सर आप कंटिन्यू कीजिए सर. गौरव सर आप कंटिन्यू कीजिए. Yes. So, for the past 2 decades, you know that internal combustion engine vehicle and conventional power and system have dominated the transportation industry. So now the concern is going regarding the vehicle emission, and there is greenhouse effect, and there is less efficiency. Okay, so electric vehicles, depending on their source of electric energy, it has the potential to be zero emission vehicle and have potential as a future alternative to petrol vehicle. So, I would like to ask, can I say electric vehicle cannot be zero emission vehicle? What would be the reason? Why would you say that electric vehicle is a zero emission vehicle?
Can anyone say something? Okay. So this is a zero emission vehicle. It is not a zero emission vehicle because you need to generate electricity, right? And then we used to charge batteries. So whenever the electricity is generated, suppose if you are using the coal, there is emission, but there is not a local emission like where you are driving your vehicle, so you don't have emission there. All right. So well, again depends. So if it is run with the help of fuel cell, or you are using nuclear energy to generate the electricity, so then you can say that we are having a zero emission. Okay. And one more problem is electric vehicle is that the limiting driving range. Okay, so it has to be, so people are doing this. So suppose we are having this to get the electric vehicle. Okay, so that we can run for 5,000 kilometers. So we get that kind of energy density. So better what we can do till that time, we can have hybrid vehicles. So there, we can combine electric vehicle with like IC engine with help of the motors, and we can increase the efficiency. Okay. So, however, electric and hybrid electric vehicle present many new and complex design challenges that are absent in well-established conventional automotive technologies and transportation system. Okay, so you know that. So this figure has been seen by many of you in the newspaper or in TV, that you see that when there was a lockdown, so environment is clear, but other time it is not. Okay, so India has 14 of 20 most polluted cities in the world. In these COVID times, as a nationwide lockdown enforced, we have observed the cleanliness of the air. So I think Indian vehicle are one of the major contributor to air pollution in India. So you can see that this is the uh, this is the air quality index, and you can see that how much reduction is there with respect to date wise, like when you see March 23, so there is lots of reduction. So if we switch to electric vehicle technology, then okay, there is a um, obviously there will be less emission. So second point is fossil fuel. So all the fossil fuel that is used in India, 84% imported, which depletes the forex reserves of the country. Okay, so you can see that Indian crude oil import. What is the burden? So India imported crude oil with worth USD 88 billion in financial year 18, which forms 21% of the forex reserves. Okay, and that is 19% of the total import bill. Okay, so this is the import dependency with respect to year. So obviously, if we switch on to electric vehicle, then this is the another benefit. And if we compare the efficiency, so you can see that if in IC engine, if you are giving 100% energy input, then 62% goes to heat loss, 17% idle loss, 6% approximately driveline loss, and only 15% we get as output tank to wheelbase, like where it is generated, and then wheel where we finally get the output. But in terms of the electric motor, so if there is 100% of energy input, the losses are 14% electric resistance and 6% driveline losses. So 80% we are going to get as output. Okay. So, what are the obstacles in using electric vehicle technology? So, first is affordability of the electric vehicle. So, many people overestimate the cost of an electric vehicle. So, switching from, but in reality, if you switch from a gasoline powered vehicle to an electric one, so it means a lower cost. हेलो And this, हेलो yes, हेलो हाँ सर बोल रहे थे आवाज फंस के आ रहा है fast क्या आ रहा है? हाँ हाँ Okay.
Okay, is it not clear? Okay, I will change my connection. Just a second. ठीक सर, ओके ओके सर, ओके। So am I audible now? Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gaurav sir, you are Is audible. Yes. And your voice is clear, Better? sir. Okay. Is it better? All Yes, 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 Gaurav. right. So first was we were in Yes. affordability. So you can see that many countries have announced plans to stopping selling of new gasoline vehicles. So for example, Norway in 2000 from 2025, so they will not sell this gasoline vehicle. So China is leading electric vehicle revolution. In response, most automakers have हेलो। हेलो सर, आवाज कट गया। वेट कर लो थोड़ा, नेटवर्क का ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, आ जाएंगे सर। हेलो गौरव सर, हेलो। He is disconnected. He will Hello. connect soon, within a minute. ओके ओके He is disconnected. ओके He will ओके। connect within a minute. हेलो हेलो। हाँ Hello, ठीक है सर, आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गए थे, आ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष बोलिए, उनको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाए। Sir. जी हाँ सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा वेट करो सर, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ओके। हेलो, हाँ मैं बोल रहा सर कि हिंदी लैंग्वेज में बोले। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। डॉक्टर आशुतोष, आशुतोष जी। हेलो सर। हाँ सर। अच्छा आशुतोष जी, जब तक डॉक्टर गौरव नहीं ज्वाइन करते हैं, यू कैन कंटिन्यू। हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। sorry at what point I got disconnected. Can someone please brief? So Slide number 3. I have हेलो slide number सर बोल रहा गौरव सर, आप 3. Yes, yes. अगर बाइलिंगुअल होते तो ज्यादा बेहतर होगा, बच्चे थोड़ा ज्यादा समझते हैं। क्या मतलब मैं दिखा Bilingual. हाँ, बायलिंगुअल आप बीच में अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा हिंदी ठीक ओके। तो अभी दिख रहा है ना नहीं आपका अभी ये और दिख रहा है ना स्क्रीन शेयर नहीं है सर आपको। शेयर नहीं ओके ओके सॉरी एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग एंड देन if I had been in college then ये प्रॉब्लम नहीं होता। कोई बात नहीं सर। ओके Now you are visible. अब दिख रहा है। हाँ स्क्रीन शेयर है। तो मैं बोल रहा था कि नीड हाँ
कि मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, तो पहला जो है हो गया देखिए पॉल्यूशन के फ्रंट पे। तो अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो इट प्रूव्स दैट आईसी व्हीकल जो है ना वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है एयर पॉल्यूशन में। दूसरा हो गया फॉसिल फ्यूल जो हम यूज करते हैं आईसी इंजन में, ठीक है ना। तो 84% जो है वो इंपोर्ट होता है, ठीक है ना, और वो यूज करता है फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हमने देखा, तो इसमें देखिएगा आप तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 88 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था, जो 21% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। और ये जो है डेफिसिट है 15% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, 19% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बिल, ये जो फॉर्म करता है टोटल इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं उसका 19% है ये, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो पहला तो ये हो जाएगा कि हमारा पोल्यूशन घटेगा, दूसरा जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेगा, हम दूसरे काम कर पाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट घटाना पड़े, मतलब हम दूसरा चीज पे फोकस कर सकते हैं। अगर फिर देखते हैं एनर्जी इफिशियंसी के हिसाब से, तो अगर एनर्जी इनपुट हम देखेंगे तो इंटरनल कंबशन इंजन में अगर हम 100% एनर्जी इनपुट देते हैं तो 62% जो है वो हीट लॉस में चला जाता है, 17% जो है वो आइडल लॉस में चला गया, 6% ड्राइव लाइन लॉस में चला गया। तो 15% जो है टैंक टू व्हील बेस को मिलता है, मतलब जहां से जनरेट हुआ और जब व्हील में हमको जो पावर दिया, तो जितना जो एनर्जी कंपेयर करेंगे तो 15% जो है हमको गैसोलीन इंजन से मिल पाता है। लेकिन वही अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखेंगे, तो अगर हम 100% दिए तो 14% जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में लॉस हुआ, 6% जो है वो ड्राइव लाइन लॉस हुआ, और 80% जो है हमको टैंक टू व्हील बेस मिल जाता है, ठीक है। तो हमको एनर्जी एफिशिएंट भी बना दिया, ठीक है। तो मेन ऑब्स्टेकल तो हो गया अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो लोग जो है कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर ओवरऑल देखेंगे कॉस्ट जो है इसका वो आईसी इंजन से कम होगा, क्योंकि कई सारी कंट्री जो है वो जो है अब चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत काम कर रहा है। तो आप देखते ही होंगे सब चाइना में जनरली होता है, एक टोटो जो सब चल रहा है। सो एज लोग जो है वाइड रेंज में इसको यूज करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जब हाई होगा तो कॉस्ट जो है वो लेसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे कि तो अभी 70,000 जो है फ्यूल फिलिंग स्टेशन है जहां पे आप डीजल पेट्रोल भर सकते हैं, 70,000 है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात करेंगे तो वो 300 ही है मात्र। और 2023 में जो है वो 2900 चार्जिंग स्टेशन जो है गवर्नमेंट नेशनल वाइड जो है वो बनाने की सोच रहा है। तो बेसिकली you have a quite lot of opportunity, and it shows that what is the scale of work that is required to be done in the country. So काफी लोग जो हैं they has to learn these skills and come up to participate in this development. Okay, the third problem जो है वो है improved battery technology, ठीक है ना। तो अब देखिए कि बैटरी टेक्नोलॉजी मतलब हायर डेंसिटी का जो बढ़ गया बन गया, तो उससे क्या होगा, उससे भी जो है आपका जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, लॉन्ग ड्राइव पे हम चला सकेंगे, कॉस्ट कम होगा, जैसे वेट एंड वॉल्यूम, वेट कम हुआ वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी दैट वाट आवर पर केजी, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी वाट आवर पर लीटर, तो ये सब जो है इम्प्रूव हो रहा है। तो उसमें आप देखिएगा तो 2011 में अगर $800 था प्राइस पर किलोवाट आवर, ठीक है, तो अभी 2020 में ये 110 हो गया है। सो एज रिसर्च इज ग्रोइंग, so the price is decreasing. So it shows that there is ample opportunity. So it is a young student like you who has to come up and yes. प्राइस प्राइस पर किलोवाट घंटा का होता है? क्या क्या देखो, प्राइस पर किलोवाट घंटा कर जैसे प्राइस जो है पर किलोवाट आवर जो कंजम्पशन होगा ना,
ठीक है, तो उसको चार्ज करने में कितना पैसा लगेगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स Oh, जिसपे yes. कि जो है ये सारे पैरामीटर्स जो है वो Hmm. बनाए गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो Oh, है वो okay, okay. बेसिकली, ऑलराइट, इज इट ओके? ओके। सो It's okay. इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेसिकली, अब अगर आप उसको कैटेगराइज करेंगे तो हो गया एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक हो गया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक हो गया फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या हो गया, आपका कन्वर्टेड रियर व्हील ड्राइव होता है, ठीक है। कन्वर्टेड फ्रंट व्हील ड्राइव, तो आप लोग को पता होगा कि रियर व्हील ड्राइव होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, ठीक है। तो आउट व्हील मोटर रियर व्हील ड्राइव, तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है। आउट व्हील मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है, जब मोटर बाहर रहा या मोटर अंदर रहा, मतलब व्हील में ही मोटर लगा दिए या फिर व्हील के बाहर जो है हम मोटर लगाए। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है 4 टाइप का जो है कैटेगराइजेशन है जनरली। माइक्रो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो फुल हाइब्रिड में भी जो है वो 4 तरह का कैटेगराइजेशन है: पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज हाइब्रिड, पावर स्प्लिट एंड कंपाउंड हाइब्रिड, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता क्या है, बेसिकली यू हैव a battery and then you have an electric motor and which is connected with a differential gear to the front axle or rear axle, as there are different orientation the way you can connect it, okay, and then you can charge the battery. So this is the basic structure. So and it also have a regenerative braking facility. उसमें क्या होता है कि जब जब आप जैसे ब्रेक लगा रहे हैं या फिर आप जो है कहीं लोअर हिल में जो है जा रहे हैं, तो उस एनर्जी को आप जो है बैटरी चार्जिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली पावर ट्रेन जो इसका हुआ, उसमें आपको हो गया, आपको मैकेनिकल ट्रांसमिशन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है, एनर्जी सोर्स होगा, आप जो एनर्जी सोर्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे कन्वर्टेड रियर व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम, तो इसमें क्या हो गया कि जो एग्जिस्टिंग है उसको आपने हटा दिया और नीचे डिफरेंशियल से आप ट्रांसमिशन के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर लगा के बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें फ्रंट व्हील में कनेक्ट कर दिया। सो so that is one type, and another is like in wheel motor drive and out wheel motor drive. In wheel motor drive में क्या हो गया, तो it minimize और even eliminate the mechanical components। तो इसी में क्या है, ड्राइव जो है गियर और मोटर जो है व्हील में ही चारों में कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, बेटर कंट्रोल एबिलिटी मिला कि चारों को जो है एज पर द रिक्वायरमेंट जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आउट व्हील मोटर, तो ये हो गया आउट व्हील मोटर, हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर, हो गया फिक्स्ड गियर, हो गया, ठीक है, और डिफरेंशियल हो गया। तो इन कंपैरिजन टू कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स, द कॉन्फ़िगरेशन हैज ए simpler structure, lighter weight, and a smaller Sir, ये complex transmission system. सर ये Torque converter. All right. हेलो सर Yes. सर ये इलेक्ट्रिकल का है ना, मैकेनिकल का होगा? क्या? हाँ, मैकेनिकल का कब होगा? एक बार हेलो, मैकेनिकल कब होगा, मतलब स्टूडेंट हो ना, सुनो, पहले सर को पूरा बता लेने दो। जो क्वेरी होगा तुम बाद में पूछ लोगे, बीच में से कोई इंटरप्ट मत करो। Questions will be answered at the end of. मैं पूछूंगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे तुम क्या बोले थे मैकेनिकल, जैसे बिल्कुल बेसिकली आई विल कवर कि जो है कितना टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, तो दिस इज द बेसिक नो हाउ आई विल बी गिविंग यू, ठीक है, जिससे कि तुम समझ सको कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कैसे काम करता है। उसके बाद थोड़ा उसके डिटेल में जाएंगे तो फिर कभी और ले लेंगे उस पर, ठीक है। तो अभी हम जस्ट थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ओके। तो आउट व्हील मोटर, फ्रंट व्हील ड्राइव, तो देखो आउट व्हील मोटर जो है बाहर है और एक फिक्स्ड गियरिंग से डिफरेंशियल गियर के साथ कनेक्ट है। अब हो गया ड्यूअल, एक टाइप हो गया ड्यूअल आउट व्हील मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव। तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंशियल हटा दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर को फिक्स्ड गियरिंग के साथ जो है वो दोनों फ्रंट व्हील या फिर एज पर रिक्वायरमेंट उसको कनेक्ट कर दिया। नाउ दीज थिंग्स, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना।
तो क्या करता है ये बेटर जो है अपॉर्चुनिटी देता है रिसर्चर्स को कि अकॉर्डिंगली मान लो कि ऐसे इंजन का जो कर्व है, मतलब जो परफॉर्मेंस देता है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम मोटर को डिजाइन कर पाए। ठीक है, कि जो हम पावर ट्रेन लगाएंगे उसको कैसे लगाएंगे, वेट क्या होगा, तो हमको जो है उसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी मिल सके। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज इन दिस। ओके, सो नेक्स्ट इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो दैट वाज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कि मोटर को तुमने जो है जैसे कनेक्ट कर दिया, दैट बिकम्स योर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या करते हैं, उसमें क्या किए, मोटर और जो आईसी इंजन हुआ उसको है कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अब द वे कैसे कनेक्ट करते हैं, कितना जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, उसके बेस पे ये है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बना। ठीक है, so hybrid vehicle provides an ideal transitory stage before the zero emission vehicle can be prepared for mass production। कि जब तक अगर मास प्रोडक्शन में नहीं गया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तब तक हम एफिशिएंसी तो बढ़ा सकते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के। तो व्हाट आर दो थिंग्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक कंबशन इंजन भी होगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होगा, और बैटरी होगा, और जनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा जो कि अदर जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, तो व्हाट आर द डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो क्या क्या कैसे कैसे हाइब्रिड बना रहे हैं हम। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ व्हीकल हाइब्रिडाइजेशन देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ हाइब्रिड सिस्टम। तीन टाइप का होता है। ठीक है, माइक्रो हाइब्रिड। ओके, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक मशीन जो है वो फंक्शन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जैसे स्टॉप स्टार्ट किया, रिजनरेटिव ब्रेकिंग के किया, बट एडिशनल टॉर्क जो जनरेट करना है, ठीक है ना, जो गाड़ी को रन करने के लिए, वो ये नहीं करेगा। ये सिर्फ ऑक्सिलरी सिस्टम को जो है वो माइक्रो हाइब्रिड बैटरी सिस्टम से जो है वो उसको चलाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हाइब्रिडाइजेशन। चलो कुछ तो इफिशियंसी बढ़ा तुम्हारे मोटर का। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा स्टॉप स्टार्ट जो है डीजल इंजन जो है ग्रेटर चैलेंज है ड्यू टू द मच हायर स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट, तो इफिशियंसी वहां पे लो हो सकता है थोड़ा, तो ये क्या किया, बैटरी से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, माइल्ड हाइब्रिड क्या हुआ, mild hybrid has an electric motor generator integrated to provide up to approximately 10% of the maximum engine power। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल टॉर्क। तो जो मैक्सिमम इंजन पावर है उसका 10%, जो ऐसे इंजन का पावर है उसका 10% जो है वो जो है तुमको इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर सेट से जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया माइल्ड हाइब्रिड। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो है हम मोटर को यूज कर सकते हैं जहाँ पे एमिशन ज्यादा होता है, जैसे कि कोस्टिंग, ब्रेकिंग, आइडलिंग चल रहा है। तो माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन प्रोवाइड सम लेवल ऑफ पावर असिस्टेंस टू द इंजन whenever the engine is not efficient and are able to provide engine a start stop functionality। Moreover, during idling they can turn off the engine and use electric power instead। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, आइडलिंग जैसे हुआ, जैसे कुछ कुछ सिनेरियोज में क्या हुआ, इंजन को ऑफ कर दिया और जो है तुम्हारा बैटरी से ही जो है वो चलेगा। तो इन दैट केस यू आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। तो क्या हो गया, फुल हाइब्रिड हो गया। तो फुल हाइब्रिड वो हो गया इन विच इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एटलीस्ट 40% ऑफ द मैक्सिमम इंजन पावर जो है वो एज ए एडिशनल टॉर्क देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, फुल हाइब्रिड व्हीकल क्या करता है, लार्जर इलेक्ट्रिक मोटर होगा, लार्जर बैटरी रिक्वायरमेंट होगा, और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है इंजन साइजिंग का, कि हम इंजन को लो रिक्वायरमेंट के लिए हम बना सके। तो दैट केस क्या होगा, इफिशियंसी जो है वो बढ़ेगा। In other words, the electric drive can facilitate the downsizing of the engine by adding enough power to maintain operation at a higher percentage of rated torque। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन। तो अब हाइब्रिड जो है अब कितने टाइप का होता है, कि अब जैसे अब वो तो देख लिए कि वर्क वाइज की हो गया तुम्हारा, माइल्ड हो गया, फुल हो गया। ठीक है ना, तो फुल हाइब्रिड में जो है वो तुम्हारा कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन जो है हम अटैच करते हैं। ठीक है ना, सो also actually when you know when you come to know about these configuration, so I would request ki that you go into Google and then उसके बाद जो जो अवेलेबल है, क्या क्या टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे कैसे किया है, so you little bit study those so that will complement the session।
ठीक है. So although there are several powertrain architecture of hybrid electric vehicle, the main one includes series hybrid, parallel hybrid, power split hybrid and complex hybrid. तो ये है तुम्हारा पैरेलल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ देख सकते हो कि एक ही शाफ्ट पे मोटर भी है, आईसी इंजन है, तो दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करता है. तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें क्या करता है कि अब मतलब दोनों दोनों चलेगा, दोनों जो है वो आपको पार्टिसिपेट कर रहा है. लेकिन इसमें क्या हो गया, सीरीज ओके, दीज आर द पैरेलल हाइब्रिड पावर ट्रेन्स, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल. उसमें क्या होता है कि जैसे इंटरनल कंबशन इंजन पहले हो गया, फिर हो गया इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर हो गया, फिर ट्रांसमिशन हो गया, फिर इसमें हो गया पोस्ट ट्रांसमिशन पैरेलल हो गया. पोस्ट ट्रांसमिशन में क्या हो गया, ट्रांसमिशन पहले हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर और आईसी इंजन के बीच में ट्रांसमिशन आ गया. डबल शाफ्ट पैरेलल हो गया, दोनों दूसरे दूसरे शाफ्ट पे डाल दिया और एक मैकेनिकल कपलिंग दे दिया उसको इंटीग्रेट करने के लिए. ठीक है. सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है, सीरीज हाइब्रिड में क्या किया कि आईसी इंजन जो है वो मोटर को जो है चलाता है. आईसी इंजन जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा एंड देन जो है वो मोटर को ड्राइव करेगा. ठीक है ना. सो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन while a small IC engine drive the electric generator, providing power for the driving electric motor and efficiently charges the battery. ठीक है ना. तो ये क्या किया कि तुम्हारा द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ सीरीज हाइब्रिड इज एन इलेक्ट्रिक मोटर विथ बैटरीज एंड दैट कैन बी चार्ज थ्रू ए जनरेटर ड्रिवन बाय आईसी इंजन. तो अब इसमें जो है अब डिफरेंट मोड हो गया ऑपरेशन का, कि अब जब मोटर जो है वो सॉरी आईसी इंजन जो है वो फ्यूल टैंक से लिया, इंजन को ड्राइव किया, वो जनरेटर को ड्राइव किया, उससे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू मोटर को चार्ज किया, मोटर को चलाया एंड देन वो डिफरेंशियल के थ्रू तुम्हारे व्हील में गया. ठीक है ना. तो अब इसमें डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया. ठीक है ना. तो इंजन अलोन ट्रैक्शन मोड, इन दिस मोड क्या हो गया, कंबशन इंजन ओनली प्रोवाइड्स द टोटल रिक्वायर्ड पावर for the vehicle motion through the generator while the electric motor act as an electric transmission between the engine. तो इंजन अलोन हो गया कि मतलब ऑनलाइन क्या हुआ कि इंजन ही जो है चला रहा है डायरेक्टली और डायरेक्टली पावर जो है उसको बैटरी से मिल रहा है. इलेक्ट्रिक अलोन ट्रैक्शन मोड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक अलोन ट्रैक्शन मोड में क्या हो गया कि जो है डायरेक्ट बैटरी से चल रहा है, पहले से चार्ज है बैटरी और वो मोटर को ड्राइव कर रहा है. हाइब्रिड मोड में क्या हो गया कि चार्ज भी कर रहा है और वो ट्रैक्शन भी मतलब टॉर्क भी व्हील को प्रोवाइड कर रहा है. इंजन ट्रैक्शन एंड बैटरी चार्जिंग, इसमें क्या कर रहा है, इंजन ट्रैक्शन भी दे रहा है और बैटरी को चार्ज भी कर रहा है. रीजनरेशन मोड है, जैसे आइडलिंग हो गया या ब्रेकिंग हो गया, उस समय क्या होगा, उस समय बैटरी को चार्ज करेगा. बैटरी रीजनरेशन बैटरी चार्जिंग मोड, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चलेगा और सिर्फ जो है आईसी इंजन जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा. अब तीसरा लास्ट मोड हो गया हाइब्रिड बैटरी चार्जिंग मोड. तो उसमें क्या हो गया कि जो है आईसी इंजन से भी बैटरी चार्ज होगा और अदर वे जैसे आइडलिंग, इन सब केसेस में क्या होगा कि तुम्हारा मोटर विल वर्क एज ए जनरेटर एंड वो भी जो है उसको चार्ज करेगा. ठीक है ना. सो दिस आर द मोड ऑफ वर्किंग. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो बिकॉज देन यू कैन सी द अवेलेबल कि क्या है जो तुम्हारे पास अवेलेबल है या जो मार्केट में आ रहा है वो कैसा है, और अगर हम इस मोड में अगर हमको चलाना है तो कैसे जो है डिजाइन कैसा होना चाहिए या फिर पावर का शेयरिंग कैसे होना चाहिए, क्या करेंगे बेसिकली. So first you have to understand that what is the configuration and then finally you will go for the design. ठीक है. तो तीसरा हो गया पावर स्प्लिट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो इसमें एक पावर स्प्लिट लगा देते हैं और उसमें इंजन और जो है मोटर का जो है, इंजन जो है डायरेक्टली ट्रांसमिशन दे सकता है या बैटरी के थ्रू जो है ये जनरेटर को भी चार्ज करके जो है मोटर के थ्रू उसको चला सकता है. सो दोनों का जो है सीरीज और पैरेलल दोनों का जो है ये एडवांटेज ले लिया. ठीक है. और जो कपलर का काम, पावर स्प्लिट का जो काम हुआ वो ईसीबीटी या एमसीबीटी जनरली यूज करता है, इलेक्ट्रिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन या मैग्नेटिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन. तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा सन गियर है, कैरियर है, रिंग गियर है, लेकिन इसमें जो है मैग्नेटिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन जो है इसमें जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता है. ये सारे जो है परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, मॉड्यूलेटिंग रिंग है. ठीक है. तो
उसमें नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो इफिशियंसी इसका बेटर होगा। तो उसी तरह से कंपाउंड हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें जो है वो सारे मतलब जो एडवांटेज है वो मिलते हैं। अगर इसमें इसमें भी अब दो टाइप हो गया, ट्रांसमिशन एंड डिफरेंशियल। अगर फ्रंट में हो गया तो ये हो गया तुम्हारा रियर व्हील, सॉरी, अगर अगर लास्ट में हो गया तो ये हो गया रियर व्हील हाइब्रिड, फ्रंट व्हील इलेक्ट्रिक कंपाउंड हाइब्रिड पावर ट्रेन। अगर फ्रंट में हो गया तो फ्रंट हो गया, दोनों हो गया तो अकॉर्डिंगली उसको नाम देंगे। एक हो गया प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या करते हैं कि जो सिर्फ बैटरी है तुमने उसको चार्ज कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा, या फिर तुमने जो है इलेक्ट्रिक ग्रिड से कनेक्ट कर दिया एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल रन। Okay, so the last option is the fuel cell electric vehicle. So fuel cell electric vehicle is a very good alternative, but the problem is with the हाइड्रोजन जनरेशन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जनरेशन तो इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप हाइड्रोजन को जो है आप स्टोर करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जिस जिस कंटेनर में उसको आप स्टोर करेंगे तो हाइड्रोजन में इनबिटलमेंट प्रॉपर्टी होता है, उसको क्या करेगा, कंटेनर को वो वीक कर देगा। ठीक है ना, तो जिसके कारण जो है देयर आर सेवरल चैलेंजेस। ठीक है, बट इट हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ एडवांटेज, क्योंकि इसमें जो है आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हीट है और पानी मिलेगा, तो आपको जो इमिशन जीरो है, और जो जनरली बैटरी चार्जिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो है आपने उसमें मेथनॉल भरा है या फिर हाइड्रोजन है, उससे आप जो है ऑन बोर्ड जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और आपका मोटर जो है वो चलेगा, तो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट, and these are the comparison between these. So fuel cell is considered better, but an energy source is hydrogen onboard electricity charging. ठीक है, but it requires quite a lot of, but in Bihar actually last year we had conducted one HR summit at Triple IT Bhagalpur, and our this industry minister Shahnawaz, Honorable Shahnawaz sir, he had said that the Bihar government is thinking to work in the methanol sector. So in that case, that can be a very good sector, and people can start doing that. So you can see the advantage. So fuel cell electric zero, low local emission, high energy efficiency, इंडिपेंडेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना, तो बट इसका जो है हाई इनिशियल कॉस्ट है, बट अगेन क्या होगा कि जो है विथ विथ विद द विद द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स ये सब जो है वो मैनेज हो जाएगा। So now in starting, the principal sir has discussed government policies. So like there is a so little bit I wanted to discuss this, because you know that government is thinking to I mean planning for electric vehicles. So they had a mission plan bees, and it is a composite scheme. They wanted to have they wanted to promote R&D, promoting charging infrastructure, supply side incentive, encouraging retrofitting of like जो भी चल रहा है उसको जो है आप retrofitting में जाइए। तो these are the startup kind of startups also you can initiate। गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है वो कुछ सब्सिडी भी दे रही है, I don't know actually how much it is, but when you start this kind of thing, government of Bihar is also giving some initial subsidies or some initial fund. So there was some fame, faster adoption and manufacturing of electric vehicles. So it was in two phase. It started in 2015 and completed in 2019, and phase two started from 2019 and will be completed by 2020. So it have this scheme covers hybrid electric technologies like we discussed, mild, strong hybrid, plug-in hybrid, battery electric vehicle. Monitoring authority is Ministry of Heavy Industries and Public. So FAME India scheme has four focus areas: technology development, demand creation, pilot projects, charging infrastructure. Okay. So these kind of things are there. Like people are government is thinking of three-wheel and four-wheel segment, public transport or registered for commercial purpose, two-wheel segment. So all segment government is having some guidelines. Okay. So that is what it is. And last I had one comparison. I wanted to give you comparison among the various EVs. So just I searched. So I got like MG Hector, Tata Nexon, and Hyundai Kona. So these three are kind of popular
EV in market. So I tried to have a comparison. So you can see that it can generate 245 Newton meter, MG Hector 353, Hyundai 395, and it as per test, Tata Nexon can cover 208 kilometer, and then MG Hector 317 kilometer, and Hyundai Kona 250 kilometer. And their charging fast charger are available, and accordingly they can be charged 1 hour or 50 minutes. So, and they are providing good warranty also, 5 years, 8 years, so similar kind of thing. So this is the existing thing. So you can also kind of search to it and can see that what are the electric vehicle technologies available, and then how you can support the government and start working in the area, get connected with your faculties. You can connect me, and then we can also do something. All right. So thank you. Am I audible? I think I hope I am not disconnected. No, sir, you are and audible and very clear voice, sir. Okay. Thank you, ma'am. So this was it from my side. ओके सर, So वेरी any नाइस। question? या किन्हीं बच्चों को क्वेश्चन है वो जल्दी से हैंड रेज करें या फिर चैट में लिखें। सर मैकेनिकल है, बोलो। मैकेनिकल का कुछ सवाल हो। मैकेनिकल का देखो चैलेंजेस है, तुम जो है पावर ट्रेन सिस्टम बनाओगे, ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे? अब तुम डिफरेंशियल बनाओगे तो जो है तुम्हारा ऑप्टिमम होना चाहिए, तो ये सारे चैलेंजेस भी उसके बारे हैं में इसमें। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ तो पे। उसके बारे में एक्चुअली मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, तो समडे आई विल प्रिपेयर एंड आई विल गिव यू अ सेपरेट टॉक ऑन द मैकेनिकल, स्पेसिफिकली मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। ऑलराइट, ठीक है। सर, बताइए थोड़ा सा मैकेनिकल के बारे में यहाँ पे। ठीक है तो सर, हाँ, बताए ना कि नेक्स्ट टाइम बता देंगे, तो थोड़ा वेट कर I लो। will prepare and then accordingly I will give you a full length talk on the mechanical requirement. ठीक है? कब आएंगे? क्या क्या? कब आएंगे? अरे भाई हम सब बता डॉक्टर देंगे सर। आशुतोष से बात कर लेंगे। बिल्कुल You can take my number also. गौरव भैया, बाकी मैकेनिकल मैकेनिज्म समझने में अगर किसी को इशू है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कॉलेज, हम कॉलेज में एक्सप्लेन कर देंगे नहीं, उसको। और गौरव सर का हम लोग अलग से एक सेशन, या फिर अगर टाइम मिलेगा, अगर सिचुएशन अलाउ करेगा तो हम हैंड्स ऑन यहाँ रख लेंगे, तो ही विल बी फिजिकली अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। एक हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि गाड़ी पे जब चलते हो, जैसे रोड पे चले, ठीक है ना, तो रोड पे चलते हो तो तुम्हारा क्या होता है, ड्राइव साइकिल बोलते हैं उसको, कि रोड पे चलोगे तो कैसे तुम्हारा पावर रिक्वायरमेंट हाई है, लो है, कहीं पे तुम्हारा क्या रोड ब्रेकर लगा हुआ है या गड्ढा है, तो पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब कैसे डिजाइन बनेगा, तो उस तरह की चीजें भी जो है हम लोग कर सकते हैं। तो एज एज पर हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, डोंट वरी, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, एक्सप्लोर द एरिया, हमसे भी टच में रहो, आशुतोष सर से टच में रहो, एंड लेट्स वर्क टुगेदर, तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा, है ना? यस सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स? एक और स्टूडेंट का था सर, ये व्हीकल से ही रिलेटेड है, चैट बॉक्स में देखते हैं। In India, if such are environment concern, then why the import duties are so high that foreign companies couldn't enter the country? For reference, Tesla is having some plan. They are, I think, going to intervene soon. They have, I think, developed a electric vehicle using induction motor, and that is going to be, I think, that will be quite popular. Like we at Triple IT Bhagalpur, we are thinking for this switch reluctance motor, but many companies are thinking to use this PMSM, permanent magnet synchronous motor. All right. So we'll see. I mean, slowly these things will go ahead, and soon the dependency cannot be removed, but slowly with the government policies, things will be done, and we need to come up to explore the research areas, and we have to generate technologies in the areas where it is demanded. ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोलो। वो चार्जिंग पॉइंट क्या था? क्या? इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट
इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे तुम जाते हो और पेट्रोल भरा लेते हो गाड़ी में, ठीक है ना, तो तुम गाड़ी कहीं भी लेके चले जाते हो, लेकिन अब बैटरी रहेगा तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा ना, तो चार्जिंग पॉइंट रहना पड़ेगा। मान लो 200 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर पे चार्जिंग पॉइंट बना दिया, जो कि 10 मिनट में चार्ज कर दे, 15 मिनट में चार्ज कर दे। या मान लो कि ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि सेट ऑफ बैटरीज है जो कि गया और स्टेशन पे जो है उसको उतार दिया और दूसरा सेट ऑफ बैटरी लगा लिया गाड़ी में और चलते बना। तो ये हो गया तुम्हारा एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन, भी ये भी है। तो उस केस में जैसे पेट्रोल भरने जैसा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि बट उसमें चैलेंजेस है बहुत कि जब तुम बैटरी को स्टोर करोगे तो हीट होगा, ब्लास्ट हो सकता है, कूल रखना है। सो देर आर वेरियस एस्पेक्ट, देन इट रिक्वायर्स पीपल टू वर्क इन द एरियाज, कि लोग आए उस पे काम करें, ग्रुप बनाए, एंड दे वर्क ऑन दिस एरिया। सो लॉट्स ऑफ पीपल हैव टू एंगेज देमसेल्फ। ठीक है, तो चलो And upgradation of battery and fast charging is entirely a different research area. So that is completely a different aspect. ठीक है, तो एनीथिंग एल्स? तो नहीं, बस बिल्कुल बिल्कुल इतना ही। ये तो आपने, आई वुड लाइक टू थैंक, नहीं सर मैं ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर, स्टूडेंट हमारे ऑटोमोबाइल का है, वो 6th सेमेस्टर प्रभात। प्रभात, आर यू रेडी? हाँ, Yes, ma'am. Am I audible? या योर वॉइस इज क्लियर। यस, हेलो, चलो, यस। So, good afternoon, everyone. As ma'am introduced me, I am Prabhat Kumar, automobile engineering from NGP. Yeah, I'll call you in 5 minutes. Sir, am I audible? go for it. Yes, yes, you are audible, you are audible. Please go ahead. So, good afternoon, everyone. As ma'am introduces me, I am Prabhat Kumar from automobile engineering branch from NGP. It is such a great honor for me to propose vote of thanks to all who have helped in making this webinar successful and memorable. So first of all, I would like to thank our honorable chief guest and speaker, Dr. Gaurav Kumar sir, from Triple IT Bhalpur on behalf of whole NGP family. Sir, about we know electric vehicles and their advantages, how it is more efficient over internal combustion engine. We really learned a lot from this webinar. And personally, since I belong to automobile engineering stream, so I personally get inspired and wanted to work on electric vehicles. Once again, thank you so much, sir, for being here and giving us precious time from your busy schedule and enlightening us in essential knowledge on electric vehicles. I am also very grateful to our honorable principal sir, who always encourages and inspires us and focuses on all-round development of us. This series of webinar to coordinator of this webinar, Dr. Asutosh sir, and organizing committee, Dr. Manju ma'am, Dr. Anupma ma'am, Dr. Brajesh sir, and IT club members for working hard to make this webinar successful. Without your contribution, this webinar might not be possible. And last but not the least, and special thanks to all the listeners who have shown their interest and curiosity to this webinar. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Prabhat, for that nice vote of thanks. गौरव सर, और ज्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर हम सबकी तरफ से, जैसे बच्चों ने भी भेजा कि आप जरूर एक बार हमारे पटना 13 आइए, एनजीपी पटना 13 आइए और फेस टू फेस बच्चों के साथ एक सेमिनार कीजिए या एक वर्कशॉप किया जाए सर, ताकि बच्चे ज्यादा बेनिफिटेड हो और हमारा भी मकसद पूरा हो। मेरा घर भी पटना में ही है, तो मैं जब भी आऊंगा तो वैसे ही मैं डॉक्टर आशुतोष से बात करके हम लोग प्लान कर लेंगे। So that would be great. सब अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू, थैंक यू।
ओके सर, थैंक यू। आप बीमार होते हुए भी आपने समय दिया, उसके लिए और ज्यादा धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, Astas ji, for bringing such great ये speaker. चलिए Thank you, arrange ma'am. He will be always associated. ओके, और उनको जरूर आप इनवाइट कीजिए ऑफलाइन के लिए भी या वर्कशॉप के लिए भी। Sure, ओके सर, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग अस। देन नाउ वी आर एंडिंग द वेबिनार। थैंक यू।